Assalamu alaikum. How are you all? So today we discuss about our project, namely tree or random binary search tree. So let's get started. Move to the next slide. First, we talk about a simple tree. A tree is a non-hierarchical data structure which consists of nodes connected by the edges. Node. Node contains key, values, and pointers to its child nodes. The last node of each path are called leaf or external nodes, and edge is the link between any two nodes. Move to the next slide. So here we see simple tree in which P is the root of the tree and the deepest node is called leaf or external nodes, and the line which connected two nodes is called edge. Move to the next slide. Now we discuss about binary search tree. बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने आइटम्स को सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करें. बेसिकली बाइनरी के मींस टू होते हैं. टू. सो ईच नोड ऑफ द ट्री हैज ओनली टू चिल्ड्रन मैक्सिमम. वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज which separate binary search tree from regular binary tree. In binary search tree, all nodes on the left subtree are lesser than root node, while the right subtree is greater than root node. Move to the next slide. We'll move to the next slide. Tree. Now we discuss about tree, random binary search tree. As we discussed earlier about tree and binary search tree. Now we can discuss about random binary search tree or tree. In tree, we can store items in sorted order that can help us in efficient search, insertion, and deletion of data. In tree, it is a combination of binary search tree and heap, a data structure that satisfies heap properties. The parent node has a larger key than its children. Each node has its key and priority number for each node and tree. So as we discuss about the properties, the first two properties are the common properties, but the third property is the important property in which we give a random priority number from our range. As we see, 1 is a higher priority number than 2. Then 2 is a higher priority number from 34. So on. Move to the next slide. Now we discuss about the time complexity. We compared other data structures from the tree. As we see in the table, the time complexity of tree is efficient as compared to the other data structures. Move to the next slide. Now we see the implementation of tree. First we see the implementation of insert. Okay. So in insert we can explain it by an example जो हमें राइट पे नजर आ रही है. यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट जो है वो ट्रीज बनाए हुए हैं. जो जैसे हमें जो फिगर ए है हमारी, उसके अंदर हमारे पास एक रैंडम बाइनरी सर्च ट्री है जिसके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं हमारे वो हमारी की हैं और जो नंबर हैं वो हमारे प्रायोरिटी नंबर्स हैं. ठीक. तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि ये जैसे हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया, तो ये वैसे ही हायर प्रायोरिटी नंबर्स के साथ ये अरेंज हुए हैं और आप कह सकते हैं कि मिनिमम वो स्मॉल नंबर्स के साथ. ठीक है. अब इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने किया ये है कि हमने एक नया नोड ऐड करा है यहाँ पे विच इज G2. ठीक है. G2 हमने ऐड करा है यहाँ पे जो कि बिल्कुल अभी ट्री के एंड में ऐड हुआ है, मगर उसका जो प्रायोरिटी नंबर है वो 2 है और उसके ऊपर वाले का जो नंबर है जो कि F9 है, F का 9 है. ठीक.
तो इसकी जो प्लेस है वो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको हमने पीछे ये बताया था कि जो है जो भी आपका पेरेंट नोड होगा उसकी जो है आपकी प्रायोरिटी नंबर स्मॉल होगा उसके चिल्ड्रन से। ठीक है, ठीक। तो अगर हम बी में देखें तो अभी हमें इसको ऊपर लेके जाना है ताकि ये अपनी सही जगह पे आ जाए। तो अगर हम अपनी फिगर बी में देखें तो इसको हमने एक स्टेप और ऊपर ले गए, F9 की प्लेस पे ले गए, F9 से हमने स्वैप करा दिया इसे। ठीक है, इसको अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी जो सही टर्म है वो क्या चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करें। ठीक, उसके बाद हम सी में आए तो सी में देखा हमने कि जैसे अब ये आ गया, अब ये चिल्ड्रन बन गया H7 का, बट 7 इज ग्रेटर देन 2, तो 7 भी इसका जो है वो क्या कहते हैं पेरेंट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 7 को इसका पेरेंट होना है तो उसको या तो 1 होना है। ठीक है, वो 1 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि और ऊपर जाना पड़ेगा, वी मूव टूवर्ड्स द एच की प्लेस की तरफ चलाएंगे। व्हेन वी कम टू द एच की प्लेस पे आ जाएंगे तो हमारे पास अब इस तरीके से आ गया कि जो हमारा मेन जो रूट है विच इज ई, तो उसके जो राइट पे है वो जी है। ठीक है, मगर उसका जो प्रायोरिटी है वो स्मॉल है, ई अब जो हमारा रूट है उससे भी ज्यादा स्मॉल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक और बार रोटेट कराएंगे और जी को और टॉप पे ले जाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं डी वाली फिगर में जी जो अपनी सही प्लेस पे आ गया मतलब 2 है, और जो आपका ट्रीप है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे कि जी जो है वो अपनी जगह पे आ गया है, उसका प्रायोरिटी नंबर सबसे स्मॉल है। और अगर आप उसके नीचे देखते जाएं तो जो ई है वो आपका जी से स्मॉल होता है, तो वो आपके लेफ्ट पे आ गया। एच जो है वो बड़ा होता है जी से बाद में आता है, तो वो आपके राइट पे आ गया। और इन जो आपके जो जी के जो नीचे के जो चिल्ड्रंस हैं उनका प्रायोरिटी नंबर जी से बड़ा है, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम हीप प्रायोरिटी। तो इसके हम थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि जो मैंने अभी पीछे चीज एक्सप्लेन करी वही यहाँ पे लिखी हुई है, द जी नोड विथ प्रायोरिटी हैज जस्ट एडेड to the tree, it has been placed in the correct position with the respect of order। ठीक है, it has higher priority than its parent। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे कि जो इसके जिस जो G2 है इसकी हायर प्रायोरिटी है इसके पेरेंट से, तो वही यहाँ पे हमने बताया। टू फिक्स दिस इशू वी परफॉर्म अ लेफ्ट रोटेशन टू मूव विथ हायर एंड अप इन द ट्री। तो जैसे मैंने बताया था कि स्वैप इसकी जो है वो एक सही टर्म नहीं रहेगी एक्सप्लेन करने के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लेफ्ट रोटेशन कराएंगे। तो हम जब भी जो है उसको जो है प्रायोरिटी के हिसाब से हमने ट्री में कोई भी नोड को उसकी वैल्यू को एडजस्ट करना होता है, तो हम वहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करवाते हैं। हमारे पास दो तरह की रोटेशन परफॉर्म करवाते हैं, एक लेफ्ट रोटेशन एंड राइट रोटेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने राइट रोटेशन करवाई, जिसके बाद जिसका जो हमें आउटपुट मिला वो बी था। देन उसके बाद हमने जो है वो राइट रोटेशन परफॉर्म करवाई जिसका हमें आउटपुट मिला सी। देन देन फाइनली वी जी इज रोटेटेड अप, मतलब अब वो जब डी हमने जब लास्ट रोटेट कराया उसको तो वो अपनी जगह पे आ गया था इन फिगर नंबर डी। नाउ जब वो अपनी जगह पे आ गया तो जो ट्री था आपने देखा कि वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर था वो भी सही हो गया था। जैसा कि यहाँ पे देखें कि उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी सही हो गया था। उसके अलावा जो आपकी जो जी से स्मॉल वैल्यूज थी वो सारे उसके लेफ्ट पे थी, एंड जो ग्रेटर वैल्यू जो थी जी से वो सारे उसके राइट पे थे। Now move towards now we see the implementation of search। तो here is a example कि उसकी implementation कैसे करेंगे। तो उसकी एग्जाम्पल है, all keys in the left subtree are smaller, जैसे हमें पता है कि small है और right वाली large है। This property holds ठीक in node tree। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल है टू चेक इफ की f is present in the tree। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि एफ जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है हमारे ट्री में, तो किस तरीके से चेक करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हमारे नोड से या रूट से। सबसे पहले हम रूट से अपने एफ को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे
कि हमारा जो रूट है वो हमारी जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं जो f है वो बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो अगर जब हम सर्च करेंगे तो हमने ये देखा कि जो f है वो बड़ा है e से, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, राइट की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से हम राइट की तरफ जाएंगे और राइट वाले में हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट नोड h आ जाएगा। तो h पे हम चेक करेंगे कि h से जो है वो छोटी है f या बड़ा है। तो h से छोटा है, तो जैसे ही हम h के लेफ्ट पे आएंगे तो हमें h f मिल जाएगा। इसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट भी होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द डिलीट इम्प्लीमेंटेशन। हियर वी सी दैट कि यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये काम करेंगे कि हम अपना सर्च वाला जो कोड है उसी को चला के देखेंगे कि जो हम नोड को या वैल्यू को डिलीट करने जा रहे हैं कि वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। अगर वो हमें रिटर्न ट्रू करेगा तो हम क्या फॉलोइंग करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि जो भी हमारा अगर जो है वो बॉटम पे लाया करता है, जो भी नोड हमने डिलीट करना है तो वो तो हम आसानी से डिलीट कर देंगे, उसमें कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर वो द मिडिल ऑफ द ट्री या इंटरनल नोड हुआ जिसको हमने डिलीट करना है, तो वहां पे हमें उसको बैलेंस करवाने के लिए रोटेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि वो सारी चीजें बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे हम लोग रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है कि कहाँ पे यूज कर सकते हैं और क्यों ये जरूरी है, क्यों यूज करें हम ट्रीप को ही। तो इसका एक तो रीजन ये है कि अगर आप अपना फाइल सिस्टम देखें कंप्यूटर का तो वो एक हिरारकी में होता है। ठीक है, हिरारकी में होता है, तो उस तरीके से हम उसकी उस जगह यूज कर सकते हैं। और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी ये ले सकते हैं हम कि अगर हमारे पास एक बिग डेटा है एनालाइज करने के लिए या उसमें से हमें कुछ फैच करना हो और वो जो डेटा है वो पेयर्स की फॉर्म में और उसमें से हमें वैल्यूज वगैरह सर्च करनी हो, तो अगर हमारे पास उसके हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक्सेस होगा तो हम ये वाला काम आसानी से कर सकते हैं ट्रीप के जरिए। That's all. Or that's all from our side. Thank you for watching. Hafiz.